یہ آج کی پریس کانفرنس عرس ثقلینی کے تعلق سے رکھی گئی ہے اور سلسلہ قادریہ مجددیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین حضور رحمۃ اللہ علیہ کا اس سال دوسرا سالانہ عرس پاک ہونے جا رہا ہے۔ یہ عرس پاک 24 ستمبر سے اس کا آغاز ہوگا۔ کل یعنی 24 ستمبر کو اس کا آغاز ہو جائے گا اور کل کی جو تقریب ہے پرچم کشائی کی ہوگی۔ انشاءاللہ کل عرس کے پہلے دن پرچم کشائی کی رسم ادا کی جائے گی، جو یہاں سے خانقاہ شریف سے بعد نماز ظہر دوپہر 2:30 بجے خانقاہ شریف پر ایک تقریری پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد یہ رسم یہاں درگاہ شریف سے روانہ ہو کر دیوان خانہ چوک، کوہاڑا پیر، نینی تال روڈ، کتب خانہ اور گلی منہاران سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پر آ جائیں گے۔ یہاں آ کر ہمارے خانقاہ شریف کے جو صاحب سجادہ نشین ہے حضرت غازی میاں حضور ثقلینی القادری، وہ اس پرچم کو خانقاہ شریف پر نصب کریں گے، اس کی رسم ادا کریں گے۔ اچھا، اس کے اگلے دن جو دوسرے دن 25 ستمبر کو درگاہ شریف کے مہمان خانے میں آل انڈیا طرحی مشاعرہ منعقد ہوگا۔ مشاعرہ طرحی ہوگا، اس کا مصرع طرح یہ ہے کہ در و دیوار بھی آمد تو ان کی مسکراتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے دن 26 ستمبر میں زائرین چادر شریف لے کر آئیں گے۔ دوسرے دن سے ہی چادر شریف کے جلوس آنا شروع ہو جائیں گے، 24 کو بھی، 25 کو بھی اور 26 ستمبر کو بھی دن بھر چادر شریف کے جلوس آئیں گے۔ لوگ زائرین عقیدت مند یہاں پر چادر پوشی کریں گے، گل پوشی کریں گے، اپنی منتیں مانگیں گے اور خانقاہ کی سجادہ نشین حضرت غازی میاں حضور سے ملاقات کریں گے۔ شام کو بعد نماز عشاء دیوان خانہ چوک پر تقریری پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو ویسے ہی حسب معمول صبح بعد نماز فجر قرآن خوانی، اس کے بعد زائرین کی آمد، چادر شریف کا سلسلہ رہے گا، مزار پر چادر پوشی و گل پوشی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ بعد رات کو بعد نماز عشاء ایک بڑے پیمانے پر تقریری پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ اس میں ہمارے دیش کے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے بہار کے علامہ عارف اقبال صاحب، پروفیسر علامہ عارف اقبال صاحب اس میں تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تو یہ 27 تاریخ کو دیوان خانہ چوک پر یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ 28 ستمبر کو اس کے آخری دن صبح 11 بجے درگاہ شریف پر ہی کوئی شریف کی رسم ادا کی جائے گی اور اسی کے ساتھ دوسرا سالانہ عرس پاک اختتام ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، عرس پاک میں ہر سال ہندوستان کے کونے کونے سے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی صوبہ ایسا بچتا نہیں ہے جہاں سے زائرین آتے نہیں ہیں، اور الحمدللہ آج خانقاہ شرافیہ ثقلینیہ کے جو مریدین ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ کوئی بھی ہندوستان کا صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، تو ہندوستان کے تمام صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دیشوں سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر اس عرس میں آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ثقلین میاں حضور کے ہی سب چاہنے والے انہی کے مرید ہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہیں، تو ان کا ہی یہ دوسرا عرس پاک ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں زائرین بریلی آئیں گے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان سب کے رہنے کا، کھانے کا، ساری ویوستھائیں، سارے انتظام خانقاہ شریف پر ہی ہوتے ہیں، خانقاہ شریف کی جانب سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خانقاہ شریف کا جو آپ نے مہمان خانہ دیکھا ہی ہوگا، کافی بڑا ہے، 5 منزلہ بنا ہوا ہے۔ پورے مہمان خانے میں کمرے بنے ہوئے ہیں، ہال بنے ہوئے ہیں، اس میں ہم لوگ انتظام کرتے ہیں زائرین کا۔ اس کے علاوہ بھی عرس کے دنوں میں جب بہت بڑی تعداد ہوتی ہے زائرین کی، تو ہم آس پاس کے مکان میں ان لوگوں کی ویوستھا کرتے ہیں۔ تو بہت سے مکان بھی ہم لوگوں نے خالی کرائے ہیں، اس میں بھی ویوستھا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو شادی ہال ہیں اس میں بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مختار بھیا کوئی سوال کریں گے اپنی طرف سے؟ بولیں۔ پروگرام کے بارے میں آج کی یہ کانفرنس عرس ثقلینی کے تعلق سے رکھی گئی ہے، جس میں آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، آپ حضرات آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سالانہ عرس ہے،
जैसा कि अभी हमजा भाई ने तफसील के साथ सारी मालूमात आपको दी, अब मैं यहाँ पर ये अर्ज कर दूँ कि 24 तारीख यानी कल बाद नमाज ज़ोहर यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से मजलिस कायम की जाएगी, जिसमें तकरीरें भी होंगी और नातो मनाक़िब भी पढ़े जाएंगे। उसके बाद फिर यहीं से जुलूस की शक्ल में यानी परचम कुशाई जिसको कहा जाता है, उसी शक्ल में हमेशा की तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बार भी होगा। उसके बाद 25 तारीख में जो तरही मुशायरा है, जिसमें बहुत बहुत दूर से यानी बम्बई से भी आते हैं, झांसी से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मुरादाबाद से भी आते हैं, बहुत बहुत अच्छे शोरा आते हैं जो अपने अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार करते हैं। इस तरह ये है दरो दीवार भी आमद से हैं, ये तमाम रदीफ़ व क़वाफ़ी रहेंगे। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा मुशायरा होता है, हमेशा ही अच्छा होता है, ऑल इंडिया मुशायरा होता है। और उसके बाद फिर 26 तारीख में दीवान खाने चौक पर इंशाअल्लाह बड़े ही खुशको एहतशाम के साथ जलसा मुनक़िद किया जाएगा। उसके बाद फिर 27 तारीख में भी वही दीवान खाने पर ही जलसा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें नातो मनाक़िब और तकारीर हमें आपको सबको सुनने को इंशाअल्लाह मिलेंगी, जिसमें बड़े बड़े ऊँचे बड़े बड़े अज़ीमुल मर्तबत खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये हमेशा ही होता है। और इस बार जो है, इस बार ख़ास तौर से सैयद आरिफ साहब और मुमकिन है मुख्तार अशरफ भी आएँ और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये जो है ये जलसा 27 तारीख में होगा। 28 तारीख में सुबह 11 बजे कुल शरीफ की फातहा होगी, और जिसमें लाखों की तादाद में उम्मीद ये है कि बहुत बड़ा मजमा होगा। इतना मजमा शायद ही कभी देखने में आया हो, इसलिए कि उससे शाह शराफत में भी बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से उसमें नहीं आ सके कि हम पीर व मुर्शिद के ही उसमें पहुँचेंगे। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार की जो भीड़ है वो गिनती से बाहर की होगी, बहुत बड़ा मजमा होगा और उसमें जो है कुल की फातहा में शरीक होंगे और यहाँ के फैज़ान से माला माल होंगे। प्रशासन का नगर निगम का सहयोग मिलता है, हर तरह का यहाँ जो है सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी और नगर निगम का भी, और सभी लोग जो है यहाँ से मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा हो जो यहाँ से कोई किसी तरह की भी जलन या हसद रखता हो। और जो हासिदीन हैं वो तो मतलब हर जगह होते हैं और हमेशा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ से सब लोग मोहब्बत करते हैं। देश को एक मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद का, उसमें FIA वाला जगह जगह, उसके लिए किस तरह का पैगाम दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक हमारा ज़ाती है, यानी मुसलमानों का ये ज़ाती मामला है, इसमें किसी को भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी ही उन्हीं की मोहब्बत पर टिकी हुई है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर नहीं है हमारे दिल में तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, और जब मुसलमान ही नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेफ़ायदा है और बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए हम पूरी तौर से ये हमेशा मतलब ये है कि इस बात को रखेंगे और कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारे तमाम कायनात, चाहे वो बाप माँ भाई बहन बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान है उनकी मोहब्बत पर। और असली और पूरी तौर से मोमिन है ही वही जो अपनी तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर हुजूर से नहीं करता है तो उसका ईमान कामिल नहीं है। लिहाजा हम ये पैगाम देंगे और उसमें भी देंगे कि इसमें जो है कोई भी दखल अंदाजी ना करें, इसलिए कि ये हमारा अपना मामला है और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी अपनी तौर पर मोहब्बत करने और इबादत करने का हक़ सबको हासिल है। लिहाजा अगर इसमें कोई मतलब ये है कि एतराज़ करता है तो उसकी
मैं समझता हूँ कम सोच है, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो तमाम कायनात की रहमत बनकर आए। 18,000 आलमों पर उनकी मतलब रहमत जो है वो मुहित है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए रहमत हो, वो हिंदुओं के लिए भी रहमत है, वो ईसाइयों के लिए भी रहमत है, वो सबके लिए रहमत है। यहाँ तक कि इंसानों ही नहीं बल्कि जितने भी चरिंद परिंद जो भी मखलूक है सबके लिए वो रहमत है। और वहाँ से हमेशा अमन, शांति और खुलूस, इखलास, यही तमाम दर्स मिले हैं जिस पर मुसलमान जो है गामजन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर हमारा खात्मा हो, ये अल्लाह से दुआ है। बरेली उत्तर प्रदेश में सालाना सकलैनिया उर्स। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराया इस खबर के साथ। तो आपने स्क्रीन पर भली बात देखा होगा किस तरह से जो है उर्स से संबंधित जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपने देखा, समझा, परखा होगा। तो इसी से रिलेटिव जो जानकारी है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। आस्ताना आलिया सकलैनिया सराफतिया दूसरा सालाना उर्स सकलैनी का हुआ ऐलान। 24 सितंबर से होगा उर्स का आगाज़। आज 23 सितंबर बरोज मंगलवार के लिए इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है बताया गया कि सराफत मियाँ का उर्स सकलैनी के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता हुई, जिसमें हाफिज़ गुलाम गौस मियाँ ने बताया। हाफिज़ गुलाम गौस मियाँ ने बताया कि इस साल दूसरा सालाना उर्स सकलैनी बड़ी शान व शौकत और उम्दा एहतिमाम के साथ मनाया जाएगा और खानकाए शरीफ के सज्जादा नसीन व प्रमुख हज़रत गाजी मियाँ हुजूर की सरपरस्ती व निगरानी में उर्स के सभी प्रोग्राम बहुसनो खूबी अदा किए जाएंगे। दरगाह शरीफ के मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता हमजा सकलैनी ने उर्स की जानकारी देते हुए बताया कि पीरो मुर्शिद हजरत शाह सकलैन मियाँ हुजूर अहले अर्रमा का इस साल दूसरा वार्षिक उर्स मनाया जाएगा। उर्स की शुरुआत 24 सितंबर से हो जाएगी। 5 रोज़ा उर्स के सभी कार्यक्रम परंपरागत रूप से किए जाएंगे। उर्स के प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार जैसे कि बताना चाहेंगे। 24 सितंबर को उर्स के पहले दिन दोपहर में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। 25 सितंबर को उर्स के दूसरे दिन शहर व आसपास के इलाकों से जायरीन चादरें लेकर दरगाह पर आएंगे और रात में दरगाह के मेहमान खाने में ऑल इंडिया तरही मुशायरा आयोजित होगा। 26 सितंबर को उर्स के तीसरे दिन भी जायरीन चादरें लेकर दरगाह शरीफ पर आएंगे और रात को दीवान खाना चौक पर तकरीर प्रोग्राम आयोजित होगा। 27 सितंबर को उर्स के चौथे दिन भी जायरीन चादरें लेकर दरगाह पर आएंगे और रात को दीवान खाना चौक पर तकरीर प्रोग्राम होगा, जिसमें देश के बड़े व मशहूर उलमाए इकराम खिताब करेंगे। 28 सितंबर को उर्स के आखिरी दिन सुबह 11 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इससे रिलेटिव और भी जानकारी है तो आप खबर के अंत तक ज़रूर बने रहें, इससे अवगत कराने का प्रयास करते हैं। शाह सकलैन एकेडमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी लतीफ़ कुरैशी ने बताया कि उर्स की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वर्ष भी उर्स सकलैनी खूब शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा। उर्स में देश विदेश के जायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। देश के ज़्यादातर राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों से बड़ी तादाद में मुरीदीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा विदेशों से दुबई, सऊदी अरब, हांगकांग, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका आदि देशों से भी जायरीन आएंगे। सहायक मीडिया प्रभारी आफ्ताब आलम ने बताया कि उर्स के संबंध में ज़िले के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी पुलिस प्रशासनिक सहयोग व व्यवस्थाओं के साथ उर्स शांतिपूर्ण, सौहार्द
पूर्वक व सकुशल संपन्न कराया जाएगा। उर्स में जायरीनों की सुविधा व सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए 500 वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा करेंगे। मोहसिन आलम ने बताया कि उर्स में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराष्ट्र के मुंबई बांद्रा से रामनगर तक चलने वाली ट्रेन के द्वारा पूरी ट्रेन बुक करके एक बड़ा सकलैनी कारवां दिनांक 26 सितंबर को बरेली उर्स में शामिल होने आ रहा है, जिनके स्वागत हेतु हर साल की तरह जंक्शन पर स्वागत कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सभी जायरीन के लिए नाश्ते पानी का उम्दा इंतजाम भी किया जाएगा। उर्स के शिरकत करने वाले सभी जायरीन के ठहरने व खाने की व्यवस्था दरगाह शरीफ की तरफ से की जाएगी। जायरीन के ठहराने के लिए दर्जनों मकान व आसपास के शादी हॉल में व्यवस्था की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुख्तार तिलहरी, मौलाना रुम्मान कादरी, हाफिज जाने आलम मुर्तजा सकलैनी, मुंतासिब सकलैनी, मुनीफ सकलैनी, मेराज हसन खान, सैयद आमिर राशिद सकलैनी, साबेज सकलैनी, खुर्रम सकलैनी, फैसल सकलैनी, आरिफ सकलैनी, मुसाहिद सकलैनी, अब्बास सकलैनी, फरहान सकलैनी, जमील सकलैनी आदि लोग मौजूद रहे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।